Good morning everyone. How are you everyone? I hope you all are fine. Now children, today I will again explain this chapter. Our country India. India is a part of Asia continent. India is a part of Asia continent. It is the seventh largest country. It is the seventh largest country in the world. India is the seventh largest country in the world. With more than 100 crore people live here. In India, how many people live here? More than 100 crore. India is the most populated country in the world after China. India is the most populated country in the world after China. China के बाद क्या है? Who is the most populated country? It is India. First is China and second one is India. It is also one of the most beautiful country in the world. India is the one of the most beautiful countries in whole world. Okay, and our country is India is the most beautiful countries. Our country is not the same everywhere. Now, our country is not same everywhere. It means here are many landforms. Okay, we have mountains, plains, plateaus, desert and island. ठीक है, here are many landforms. First one is mountains, second plains, plateaus, deserts and island. Very few country in the world can boast of so much variety. India is the only country where the many landforms we find the many landforms. Other country is not much variety. This is what makes India so beautiful. This kind of makes India so beautiful. Okay. Now first the Himalayan mountain ranges. ठीक है, look at this picture. This is the map of India. It is the north side, west side, east side and it is the south side. Himalayas located in north side. Okay. Here look at this. This is the Deccan Plateau, Great Indian Desert. ठीक है, ये क्या है? वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट, नॉर्थर्न प्लेन्स. ठीक है, this is a Bay of Bengal, Arabian Sea and Indian Ocean. The Himalaya mountains ranges. Mountains are portion of earth and that rise steeply from the surrounding area. पर्वत क्या है? पृथ्वी का एक भाग है जो हमारे चारों तरफ क्या है? बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं. A chain of mountains form a range. क्या है? पर्वतों की एक श्रृंखला हमें देखने को मिलती है. All along the north of our country lie the mighty Himalayan mountains ranges. North of our country, जो नॉर्थ साइड है वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? हिमालय माउंटेन पर्वत. ठीक है. These ranges have some of the highest peak in the world. जो इस रेंज में क्या है? बहुत सी क्या है? हाईएस्ट चोटी हैं. माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. और उनमें से एक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर. द हाई पीक आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. जो माउंटेन्स का एरिया है वो हमेशा क्या है? किससे कवर्ड रहता है? बर्फ से कवर्ड रहता है. द माउंटेन रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड. और जो माउंटेन पर्वत जो रहता है वो कैसा होता है? बहुत ही ठंडा होता है.
Many of our big rivers like the Ganga, Yamuna and Brahmaputra start from the Himalaya. यहाँ से क्या है, हिमालय पर्वत से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र. As they flow down to the plain, several smaller rivers join the main rivers. जब वो नीचे पर्वत से नीचे की तरफ आती हैं तो उनको क्या है, बहुत सी छोटी नदियां क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं. The melting snow from the mountains keep these rivers fed through the hot and dry summer. The melting snow from the mountains keep these rivers fed through the hot and dry. जब क्या होती है, बर्फ पिघल जाती है और क्या है, नदी नीचे की तरफ, पानी नीचे नहीं आता है तो वो नदियां क्या हो जाती है, सूख जाती हैं. एज वी मूव डाउन टू द लोएस्ट स्लोप्स वी फाइंड थिक फॉरेस्ट. जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हम क्या देखते हैं, थिक फॉरेस्ट. दिस इज कॉल्ड द तेरी रीजन. इसे हम क्या कहते हैं, तेरी रीजन कहते हैं. सेकंड है नॉर्थर्न प्लेन्स. प्लेन्स आर वास्ट एक्सपेंस ऑफ फ्लैट और जेंटली रोलिंग लैंड. प्लेन्स कैसा होता है, बहुत ही बड़ा होता है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हिमालय के बाद क्या है, ये हमारा क्या है, नॉर्थर्न प्लेन्स एरिया है. ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्थर्न प्लेन्स एरिया है. As we go down to the south of Himalayas, we come to the northern plains of India. जैसे हम नीचे साउथ की तरफ आने लगते हैं तो हम क्या है, we come to the northern plains of India. हम किस तरफ आते हैं, नॉर्थर्न प्लेन्स की तरफ आते हैं. This is also called the Gangetic Plain. इन्हें हम क्या कहते हैं, गैंगेटिक प्लेन कहते हैं. Many rivers like the Ganga and Yamuna flow through these plains. कौन कौन सी नदियां बहती हैं नॉर्थर्न प्लेन्स में, गंगा, यमुना. This makes the land very fertile and most suitable for cultivation. तो जिसलिए क्या होता है, ये नॉर्थर्न प्लेन्स जो एरिया है वो कैसा होता है, बहुत ही फर्टाइल होता है. और क्या होता है, कल्टीवेशन मीन्स खेती करने के लिए क्या होता है, बहुत ही सुटेबल होता है. The region is thickly populated. Many well-known cities and towns are located along the banks of rivers Ganga and Yamuna. अब जो ये नॉर्थर्न प्लेन्स एरिया है वो क्या है, कैसा एरिया है, पॉपुलेटेड एरिया है. अब जब हम किसी जगह पे बच्चों जब हम रहते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, अपनी फैसिलिटी देखते हैं. ठीक है, जहाँ पर हमें क्या है, हमें पानी की फैसिलिटी हो, हमें हॉस्पिटल नजदीक हो, हमें स्कूल नजदीक हो, बैंक नजदीक हो, मार्केट नजदीक हो, तो वही यही चीजें हम क्या है, देखते हैं. तो जो नॉर्थर्न प्लेन्स एरिया है वो इसलिए वहां पर पॉपुलेटेड है क्योंकि वहां पर क्या है, गंगा, यमुना जैसी नदियां बहती हैं, जिससे क्या है, हमें खेती करने में क्या होती है, आसानी होती है. इन द प्लेन्स इट इज वेरी हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर. ये क्या है, हॉट रहते हैं समर में और कोल्ड होता है विंटर में. नाउ नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन क्या है इंडिया का, द थार डेजर्ट. अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड इज कॉल्ड डेजर्ट. जो क्या है, एक बड़ा सा एरिया किससे कवर्ड होता है, सैंड. इट मीन्स रेत. रेत से जो कवर होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं. एज वी ट्रेवल टू द नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री. जैसे हम क्या है, नॉर्थर्न वेस्टर्न मीन्स उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, लैंडस्केप चेंजेस. हम क्या देखते हैं, जो हमारी जमीन है, भूमि है, वो कैसे है, चेंजेस उसमें हैं. वी कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड. हम दूर दूर तक क्या सिर्फ क्या देखते हैं, सिर्फ रेत ही रेत देखते हैं. दिस एरिया इज कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट. इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट और क्या कहते हैं, थार डेजर्ट भी कहते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ये क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये इंडिया का जो मैप है, ये कौन सा भाग है, उत्तरी भाग है. ठीक है, तो ये क्या है, कहाँ पर, हमारे उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है. द रीजन गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल.
यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही कम बारिश होती है। द क्लाइमेट हियर इज ड्राई एंड हॉट इन समर। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है, बहुत ही ड्राई और बहुत ही गर्म होता है। एंड कोल्ड इन विंटर, और सर्दियों में कैसा होता है, बहुत ही ठंडा होता है। लाइफ इन द डेजर्ट इज डिफिकल्ट। जो डेजर्ट की लाइफ है वो कैसी है, बहुत ही डिफिकल्ट है। द डेजर्ट रीजन इज नॉट थिकली पॉपुलेटेड, और जो रेगिस्तान का जो एरिया है वो क्या है, पॉपुलेटेड नहीं होता है। द कैमल इज कॉमनली यूज्ड इन द डेजर्ट फॉर ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं एज ए ट्रांसपोर्ट, हम क्या यूज करते हैं, कैमल। कैमल इट मीन्स ऊंट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर, यू कैन सी दैट पीपल यूज द कैमल एज ए ट्रांसपोर्ट फॉर, इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इसे हम क्या है, कैमल को हम क्या कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, द डेक्कन प्लेट्यू एंड द घाट्स। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला। जो इंडिया का साउथर्न पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला। अ पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड जटिंग इनटू द सी एंड सराउंडिंग बाय लार्ज वाटर बॉडीज। अब जो पेनिनसुला जो एरिया है, ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यू कैन सी, ये क्या है, डेक्कन प्लेट्यू। अब जो ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये जो इसको हम पेनिनसुला कहते हैं, तो ये क्या है, तीन ओर से क्या है, पानी से घिरा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, ठीक है। तो इसके चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है। तीन ओर से किससे घिरा है, पानी से घिरा है। द इंडियन पेनिनसुला हैज द बे ऑफ बंगाल टू इट्स ईस्ट। अब जो बे ऑफ बंगाल है वो कहाँ पड़ता है इंडिया के मैप में, ईस्ट की तरफ। द अरेबियन सी, अरेबियन कहाँ है, वेस्ट की तरफ, और इंडियन ओशियन साउथ की तरफ। दिस पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द साउथर्न प्लेट्यू और द डेक्कन प्लेट्यू। तो इसको हम क्या कहते हैं, साउथर्न प्लेट्यू भी कहते हैं और डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं। प्लेट्यू इज अ फ्लैट टॉप रीजन दैट इज रेज अबव द सराउंडिंग लैंड। अब जो प्लेट्यू होता है तो वो कैसे उठा होता है, जैसे कि एक लैंड है, तो ये लैंड से क्या है, थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर की तरफ उठा होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। जो ये पृथ्वी जमीन से क्या होता है, थोड़ा सा कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। A plateau is a flat top region that is raised above the surrounding land. The Deccan Plateau region has many rivers like the Krishna, Kaveri, Godavari and Mahanadi. अब जो डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी। These rivers are rain fed. They often become dry during the summer. ये क्या है, जो नदियां हैं प्राय क्या है, समर में कैसी होती हैं, ड्राई होती हैं। Unlike the snow-fed rivers of the north, this region is very rich in minerals. अब जो ये रीजन है, डेक्कन प्लेट्यू जो एरिया है, वहां पर क्या मिलते हैं, हमें बहुत से मिनरल्स मिलते हैं। Some part of the plateau are covered with thick forest. और कुछ जो प्लेट्यूज का कुछ भाग क्या है, किससे कवर्ड है, फॉरेस्ट से कवर्ड है। दिस रीजन हैज अ मॉडरेट क्लाइमेट दैट इज नीदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। जो ये यहाँ का जो डेक्कन प्लेट्यू का जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, वो कैसा है, ना तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडा है। टू द वेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आर माउंटेन्स कॉल्ड द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, जो डेक्कन प्लेट्यू है, माउंटेन्स आर कॉल्ड द वेस्टर्न घाट। जो डेक्कन प्लेट्यू है जो वेस्ट की तरफ है, इसे हम क्या कहते हैं, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, वेस्टर्न घाट, और ये क्या है, ईस्टर्न घाट, क्योंकि ईस्ट की तरफ है, और ये क्या है, वेस्ट की तरफ है। टू द ईस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यूज आर माउंटेन्स कॉल्ड द ईस्टर्न घाट। These mountains are not as high those in the Himalayas range. अब जो ये जो डेक्कन प्लेट्यू, जो ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है, ये क्या होते हैं, ऊंचाई में क्या होते हैं, हिमालय से क्या होते हैं, कम ऊंचे होते हैं। There are narrow strips of plain land.
along the east and west coast of India. They are called the coastal plains. अब जो बच्चों कोस्टल प्लेन्स होता है वो क्या होता है, जो क्या है उसको हम हिंदी में कहते हैं समुद्र तटीय भाग। समुद्र तटीय भाग क्या होता है, जो क्या है नदी से क्या होता है घिरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं समुद्र तटीय भाग कहते हैं, कोस्टल प्लेन्स। नेक्स्ट वन इज द आइलैंड। An island is a piece of land surrounded by water. अब जो आइलैंड होता है द्वीप, आइलैंड को क्या कहते हैं द्वीप, वो किससे घिरा हुआ होता है पानी से। इट मीन्स ये क्या है, जैसे कि आपका क्या है एक द्वीप है, ठीक है, ये आपका क्या है एक द्वीप है और इसके चारों तरफ क्या होता है पानी ही पानी होता है, ठीक है। If you look closely at the map of India, you will find several small islands in the Arabian Sea and Bay of Bengal. अगर आप क्या है मैप में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। There is a group of island called the अंडमान एंड निकोबार। अब जो बे ऑफ बंगाल है उसे हम क्या कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहते हैं, और जो अरेबियन सी में है वहां पर हम क्या कहते हैं लक्षद्वीप कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है लक्षद्वीप है, ठीक है। तो ये क्या है आइलैंड है। ये लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है अरेबियन सी में, और अंडमान कहाँ पड़ता है बे ऑफ बंगाल में। These islands are part of our country. अब जो ये आइलैंड है ये क्या है हमारी कंट्री के पार्ट हैं। Now children, I will explain the questions answer. Now first question, name the physical division of India. आपने क्या बताना है, जो इंडिया के फिजिकल डिवीजन है वो बताने, जो हमने क्या है पढ़े थे। फर्स्ट क्या पढ़ा था हमने, द हिमालयन माउंटेन्स। सेकंड क्या है, द नॉर्थर्न प्लेन्स। थर्ड क्या है, द डेक्कन प्लेट्यू। फोर्थ, the Thar Desert। फिफ्थ, आइलैंड। ठीक है, कौन कौन से 5 जो फिजिकल डिवीजन है कौन से हैं, द हिमालय माउंटेन्स, द नॉर्थर्न प्लेन्स, द डेक्कन प्लेट्यू, द थार डेजर्ट एंड आइलैंड। और क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज, नेम देम। मतलब जो इंडिया की जो बाउंड्री है वो 7 कंट्रीज से मिलती है, तो उनके नाम बताने हैं। तो फर्स्ट है अफगानिस्तान। फर्स्ट क्या है अफगानिस्तान। सेकंड है बांग्लादेश। थर्ड भूटान। फोर्थ चाइना। फिफ्थ पाकिस्तान। सिक्स्थ नेपाल एंड 7th म्यांमार। ठीक है, जो हमारी क्या है कंट्री, हमारी कंट्री की जो बाउंड्रीज क्या है 7 कंट्रीज से मिलती हैं,
तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है अफगानिस्तान, सेकंड बांग्लादेश, थर्ड भूटान, फोर्थ चाइना, फिफ्थ पाकिस्तान, सिक्स्थ नेपाल एंड सेवन म्यांमार। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? विच टू मेजर रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी? दो नदियां आपने बतानी है जो कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है। सो चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो दो नदियां हैं अरेबियन सी में गिरती हैं, कौन कौन सी हैं? नर्मदा एंड ताप्ती। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? विच स्टेट्स हैव अ कॉमन कैपिटल? कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? यूनियन टेरिटरीज को हिंदी में कहते हैं बच्चों केंद्र शासित प्रदेश। इंडिया में कितने स्टेट और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? और कौन सा एक स्टेट ऐसा है जिसकी क्या है? कॉमन कैपिटल है। ठीक है। तो कितने स्टेट्स हैं? 29 स्टेट्स। कितने स्टेट्स हैं? 29 स्टेट्स। और कितनी टेरिटरीज हैं? 7 यूनियन टेरिटरीज। और कौन कौन से हैं बच्चों? फर्स्ट है आपका दिल्ली, सेकेंड पुडुचेरी, थर्ड दमन एंड दीव, फोर्थ दादरा एंड नगर हवेली, फिफ्थ लक्षद्वीप, एंड सिक्स्थ अंडमान एंड निकोबार, एंड लास्ट सेवंथ इज चंडीगढ़। ठीक है। अब जो दो स्टेट्स की क्या है, एक ही कैपिटल है, वो कौन कौन से हैं? पंजाब एंड हरियाणा। इन दोनों की कैपिटल क्या है बच्चों? इन दोनों की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना? अब आपको बताना है कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है। आप ये खुद से लिखेंगे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया? तो स्मॉलेस्ट जो स्टेट है, स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? गोवा। और लार्जेस्ट कौन सा है? राजस्थान। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज इंडिया लोकेटेड एंड व्हाट इज द टोटल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया? अब इंडिया बताओ कहाँ पर लोकेटेड है? कहाँ लोकेटेड है?
एशिया में। कहाँ लोकेटेड है? एशिया में। इंडिया is located in southern part of the continent ऑफ एशिया। ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया में। ठीक है, अब जो इसकी क्या है, टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ क्या है इसकी? टोटल लेंथ क्या है इसकी? 3214 किलोमीटर। और जो ब्रेथ है इसकी, मतलब चौड़ाई, चौड़ाई क्या है इसकी? 2933 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ पर ये लोकेटेड है? साउथर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का जो एशिया कॉन्टिनेंट का साउथर्न पार्ट है, वहाँ क्या है? इंडिया लोकेटेड है। और इसकी लेंथ कितनी है? 3214 किलोमीटर। और ब्रेथ कितनी है? 2933 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाटर बॉडीज लाइज टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ इंडिया? कौन सी क्या है वाटर बॉडीज क्या है ईस्ट में और वेस्ट में गिरती है? तो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 8, बे ऑफ बंगाल lies to the east। कहाँ गिरती है बे ऑफ बंगाल? ईस्ट में। और एंड अरेबियन सी। अरेबियन सी कहाँ गिरती है? लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, बे ऑफ बंगाल कहाँ? ईस्ट में गिरता है। और अरेबियन सी कहाँ गिरती है? वेस्ट में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, indicate the following in the given map of India: Bay of Bengal, Deccan Plateau, the Great Himalaya, Desert, Arabian Sea। ये क्या है बच्चों? आपने बताने हैं। क्या है? आपको मैप में समझाया था कहाँ पर क्या है? अरेबियन सी है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, डेजर्ट, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू और क्या है? हिमालय। तो ये आप बच्चों खुद से क्या है मैप में फिल करो। पहले आप ड्रॉ करोगे और उसके बाद आप क्या है इस मैप में क्या करोगे? आप इनको फिलअप, ये जो आपके वो हैं एरियाज हैं, इनको आप क्या करोगे? फिल करोगे। ठीक है, या तो आप मार्केट से फिजिकल मैप आप लेना, मार्केट से इंडिया का फिजिकल मैप लेना, या आप खुद से इसको क्या करना है? आपने खुद से ड्रॉ करना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।